So welcome to Conversations. Welcome to Talk 100.3. Sir, पहले तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर राजन लाल. Thank you so much. डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बर्थडे भी है और आज आपकी बुक भी लॉन्च हो रही है. और सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रोशंस एंड सर Thank you. Wish you Thank all you. very happy birthday. Happy birthday. I'm so happy. Happy birthday. That my friends of nearly 40 years, 45 years, we finally get together and they come to launch my book and felicitate me for my book, and I'm felicitating them for the success of the Roshan. Thank you so much. And I'm so proud of Gudu, you, and Shashi for whatever they've done. It has created absolutely, at least in Dubai, a big hangama. And everybody is phoning me up. मैंने कहा भैया, कहते हैं आपके दोस्त से आपने बनाई है. मैंने कहा भैया मेरा दोस्त है तो मैं खुश होता हूँ. And I've been propagating this, and I'm so proud, Gudu, of what you both have done. And Shashi, you have done a job which is by far so good in the direction, and I think editing, both of you were involved, whatever. But a fantastic job. I mean, it's emotional, tearful, and nostalgic. Great job. Yeah. It's hard to get so many people, you know, on the same platform. But since आपकी बुक जो है वो भी बॉलीवुड की जर्नी और स्टोरीज के बारे में है, तो ऐसा क्या है आपकी बुक में जो रोशंस में हमने नहीं देखा? मेरी बुक में तो भैया, मेरी बुक इज not about me, me myself. This is about the mistakes which a man makes in his life, and the mistakes that I have made in my life, and what are the repercussions, and who all have been affected by it. And it is basically an admission of my mistakes as a man for my next generation to come, so that they don't make the same mistakes. So this is more about that. Bollywood is part of my journey, because I think Bollywood has been part of my DNA from childhood, because of my mama, Mr. J.C. Jain, who was General Manager Times of India. He started the Filmfare magazine, the Filmfare Award. तो मैं बचपन से फर्स्ट फिल्मफेयर अवार्ड पे भी गया हूँ शनमुख में. तो मेरे बचपन से वो था एसोसिएशन पूरा. एंड देन इट बिकेम 1990 में मौका मिला टू डू फिल्म्स, टू डू डबिंग ऑफ फिल्म्स. सो आई गॉट इनटू इट, डिड दैट, and then I've been associated with Shashi for last 25-30 years. When he started the IT Award. We did that. Then he did the Beti Foundation, and then the Great Women Achievers Award, and the Great Magazine, and then make 3 films, and then now finally the Roshans. Yeah. I think now he has reached his niche and found his niche, and I'm so proud of you, Shashi. Thank you. I'm Rajan. so Thank proud you. of you. Sir, Kind of you. आप लोगों ने द रोशंस बनाई, तो हमने चारों एपिसोड्स देखे. नाउ ऑफ कोर्स इतनी सारी स्टोरीज और हमको नहीं पता थी, बट टुडे आई आल्सो वांट टू डेल्व इनटू द स्टोरीज दैट यू हैवंट बीन एबल टू टेल बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस. तो आपकी जितनी भी मूवीज हैं, वी ग्रोन अप वाचिंग देम, यू नो. एंड उस जमाने में ऐसा था कि जितने भी प्रोड्यूसर्स थे तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नहीं थे. यू हैड टू पुट इन योर ओन मनी. And when you were making like a Khoon Bari Mang or a Kamchor or a Khel, all these movies, and so many people were saying that नहीं ये नहीं चलेगी. और जब वो नहीं चलती थी तो as a family आप पे क्या गुजरती थी जब obstacles आते थे, challenges और failures आते थे? See, life में ups and downs तो होते ही हैं. So we should treat the ups also the same level and downs also in the same level. So we should learn from your failure, and you should learn from your success also. But as a family, did your family not tell you to like now maybe you should stop, maybe you should like you know? They always encouraged me. They said no, whatever you think you make, you should do, and that's the way you should move ahead. और जब हम इन फिल्मों की बात करते हैं तो जैसे खून भरी मांग एक इतनी बड़ी हिट बन गई, 89 में आई थी शायद. A woman centric film in a time when nobody thought about it. तो उस फिल्म का कोई किस्सा अगर आप बताना चाहो हमें कि जो हमें शायद नहीं पता हो, एक ऐसी याद जो जुड़ी है आपके साथ. ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जो डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं है. 10 दिन बाद मेरी आउटडोर शूटिंग थी. तो मैं पिक्चर बहुत जल्दबाजी में बनी. एकदम से स्क्रिप्ट रेडी हो गई, रेखा भी फ्री थी, तो मैंने एकदम शुरू कर दी. तो आउटडोर शूटिंग कहाँ कर रहे हैं वो पता नहीं था. तो 10 दिन के बीच में गैप था, 10 या 12 दिन का. तो मैं ऊटी में काफ़ी शूटिंग कर चुका हूँ एज एन एक्टर. तो मैं समझा कि चलो ऊटी चला जाता हूँ.
वहाँ कोई ना कोई लोकेशन मिल जाएगी। जी जो लोकेशन चाहिए था क्रोकोडाइल का और घर का। तो जब मैं मैसूर से निकला तो वहाँ दो रास्ते थे। एक जगह था कुर्ग करके एक हाँ, हिल हाँ। स्टेशन है, एक जगह था ऊटी। तो मैंने किसी को पूछा ये कुर्ग क्या है? बोले एक हिल स्टेशन है बहुत खूबसूरत। तो मैं बोले ऊटी तो मैंने देखा है, मैं कुर्ग चलता हूँ। तो मैं कुर्ग चला गया और वहाँ मुझे एक दिन में सारे लोकेशन मिल गए, लेकिन वहाँ रहने की होटल नहीं। ओके तो उसमें होटल था दैट। तो एक स्कूल था पुराना, जिसमें कुछ 100 कमरे थे, वो खाली पड़ा हुआ था। मैंने 10 दिन बाकी है, क्या करें? तो मैंने वहाँ के वेंडर्स को बुलाया कि भाई आप इसको फर्निश कर सकते हैं, मुझे होटल बनाना है इसमें। जी एक रूम हो, बिस्तर हो और वॉशरूम हो अच्छा, और पर्दे वर्दे लगा दो, थोड़ा चूना पेंट कर दो, बाहर से भी अंदर से भी। ओके और फिर मैंने वहाँ से रेखा को फ़ोन किया। हाँ मैंने रेखा, जो मुझे लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई है, रहने की जगह नहीं है, देयर इज़ नो एसी इन द रूम, पंखा है और ऐसे ऐसे कमरे की हालत है। She said, I agree to whatever you say. If you found the location, there's nothing like it. तो हम लोग फिर वहाँ पे 60 डेज हम लोग रहे, about 180 people in it. कबीर बेदी, सोनू वालिया, रेखा, so we all stayed there. बट यू नो उस टाइम पे क्या आपको लगता है कि आज अगर ऐसी बात हो तो आज के एक्टर्स बन जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू द सेम थिंग टुडे इन I guess why 2025? not? Because you know what happens is when you make a film, everybody works for the film. So you find a good location is the most important aspect for the film. जी और जब आप कहो ना प्यारे बना रहे थे तब भी बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारी कहानियां हैं उसकी भी, तो वहाँ से अगर कोई आप बताना चाहो, शायद आपने शो में बता भी दी हो तो भी चलेगा, बट समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग विच हैज स्टेड विथ यू। तो क्या जब मैं पिक्चर बना रहा था कहो ना प्यारे, तो मुझे वो सपने आते थे कि ऐसा लोकेशन होना चाहिए, ऐसा शिप होना चाहिए। तो मैं वो शिप ढूंढने निकला। पहले मैं गया ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ बहुत से क्रूजेज होते हैं। हाँ तो मैंने सारे शिप्स देखे, मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो वहाँ एक पोस्ट कार्ड लगा हुआ था, जो शिप मैंने कहो ना प्यारे में यूज़ किया है। तो ये मैंने पूछा कि ये शिप कहाँ है, ये कहाँ है आपकी? तो बताया गया कि वो एथेंस में है। So then I flew from there to Athens ओके and I met the owner of the ship. And he said it's a sail ship. We do go to Bangkok sometimes. We have never been to India. ओके I'm like, can you come to India and take us on board? We'll go to Bangkok from there. It's a 9 days, 10 days journey from here. And I'll अच्छा shoot in the ship and I'll book the whole ship. बहुत मुश्किल से वो माने और फिर वो आए बॉम्बे में और हम लोगों ने अपना सब जनरेटर लोड किया कि वो वर वर्किंग ऑन डीसी, हमारे लाइट्स वर्क करते हैं एसी में। आई हैव टू मेक अ स्पेशल जनरेटर, साउंड प्रूफ जनरेटर। सो वी लोडेड दैट एंड देन वी शॉट ऑन शॉर्ट ओवर देयर। फिर हमने कुछ गाने रिकॉर्ड हो गए। लोकेशन चाहिए थे हमें, जहाँ सी हो, आइलैंड हो एक, वो कहाँ थे? तो मैंने कहीं और भी फोटोज़ देखे कि ये रॉक्स निकले हुए हैं सी में, ये जगह कहाँ है? तो बोले फुकेत में है, हाँ कराबी आइलैंड्स करके हैं। जी वो फुकेत से कुछ 4 घंटे की ड्राइव है, 300 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गए तो लोकेशन तो मिल गए, वहाँ भी होटल नहीं। एक होटल था जिसमें 8 कमरे थे। पहले कैसे क्या कैसे कर रहेंगे? तो फिर वहाँ का जो मेन मार्केट है, मैं उनके लेन के पीछे सबके घर होते थे, दुकान के पीछे। तो मैंने पूरी यूनिट को 2-2 करके, एक-एक करके सबके घर में ठहराया। दैट ऑल्सो नॉट फॉर 5-10 डेज, फॉर 50 डेज। वाओ। तो ऐसे करके लोकेशन मिलती है। आप बहुत मेहनत करते थे फिल्म बनाने में, लाइक मेहनत करते नहीं थे, मेहनत करते हैं। उस बगैर मेहनत की कुछ आपको नहीं। लगता है कि अब फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ एआई एंड इतना वीएफएक्स और सब? जी हाँ, इजी तो हो गया है और But जितना इजी हो गया उतना मुश्किल भी है। VFX is one of the most difficult things. डिफिकल्ट जी ये आपको पर्दे पे बहुत लगता है कि ऐसे उड़ के यहाँ से हो गया,
उसको बनाने के अंदर जितना टाइम और जितनी एनर्जी जाती है, each frame has to be first made by hand, and then the sequence becomes. So it takes hundreds of hours to make a small sequence of a minute or so. Okay. So VFX is not easy. It looks not very easy. easy on the screen, but क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि जो बातें हमारे दिमाग में वो आप कर रहे हैं VFX, Yeah. तो आपके दिमाग में वही सपने डालना है वो जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो सबसे बहुत डिफिकल्ट। बड़ा चैलेंज है। पर आप जब द रोशंस बना रहे थे तब है कि कोई ऐसी एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहो हमारे साथ के, बिकॉज आई थिंक ये 4 एपिसोड्स बनाने में भी आपको काफ़ी वक्त भी लगा होगा, बिकॉज टू गेट सो मेनी पीपल टू टॉक अबाउट सो मेनी स्टोरीज। जी, इसको बनाने में दो साल के करीब लगा, क्योंकि इसमें पहले रिसर्च थी, क्योंकि रोशन साहब के ज़माने का जो म्यूज़िक था, उनके ज़माने में कौन कौन लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे इस डॉक्यूमेंट्री को, किस तरह से कर सकते हैं, वो सब। फिर इनकी भी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो जो आप गूगल में देखते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कौन लोग हैं, क्या इनकी दुश्वारियाँ रहीं, क्या इनके हैप्पीनेस रही, उसको भी जानने के लिए वक्त लगा। और फिर उसके बाद शूटिंग, एंड ऑफ कोर्स as you've seen, we have more than 45 stars in it. या So it's not as easy job to do, and they're all top people from their respective fields. जी, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी मेहनत रंग लाई है, और यू नो आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, आई नो बाकी भी लोग रुके हैं आपके लिए, पर थोड़ा सा अगर आप हमें आज की अपनी जो लेटेस्ट फिल्में हैं राकेश जी जो आपने बनाई है, आफ्टर कहो ना प्यार है, और जो 2010 के बाद आपने जो बनाई है फिल्में, वहाँ से अगर कोई आप हमें कोई मैंने किस्सा बताएं। 2010 के बाद मैंने बनाई काबिल आपने एक काबिल बनाई 2018 में 17 में, और 2013 में क्रिश बनाई। क्रिश बनाई थी आपने। अभी हम क्रिश पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द शुरू कर देंगे। पर आप इतना स्लो क्यों कर दिया आपने? हम तो ज़्यादा देखना चाहते हैं आपकी फिल्में। मैं बहुत सोच समझ के मैं पिछले शौक के लिए बनाता हूँ, पैसों के लिए। पैसों के लिए नहीं। मतलब पैसे, मतलब ये नहीं कि मैं इसमें 10 पिक्चर लॉन्च कर लूँ, भी कर सकता हूँ, जी। पर मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं 10 पिक्चर लॉन्च करूँ। मुझे एक पिक्चर बनाता हूँ तो मुझे सालों नींद नहीं आती, अच्छा। तो सपने में वो पिक्चर घूमती रहती है। तो लगन है एक, तो लगन से काम करो तो 2 साल निकल जाते हैं, कभी 5 साल निकल जाते हैं, कभी 6 साल निकल जाते हैं। जब आप अपने प्राइम में थे, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग ऑल दीज मूवीज, और तब तो एटलीस्ट आपकी 2-2, 3-3 साल में एक फिल्म आ जाती थी और बहुत बड़ी हिट्स होती तब थी। भूख बहुत लगती थी, अभी भूख नहीं लगती। तब आपको कौन लगता था कि आपका कंपटीशन, जब आप फिल्म फेयर अवार्ड्स के उस टेबल पे बैठते थे, आसपास यश चोपड़ा है, सुभाष घई है, आपको नहीं, लगता? ऑल गुड फिल्म मेकर्स, ये तो किस्मत की बात होती है। कोई पिक्चर चल जाती है, क्यों चलती है वो हमें पता नहीं, क्या मैजिक है। अब ये डॉक्यूमेंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें इतने मैसेजेस आए हैं, इतने फोन्स आते हैं, क्या मैजिक है, क्या है, कुछ पता नहीं हमें। जी। हमने तो सीधे सीधे, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे शशि ने Interview लिए। हमारे साथ इंटरव्यू लिया है और कैसे जोड़ा है सबको, ये सब शशि का कमाल है। और इसमें एक मैजिक है, कोई मैजिक है जो काम करती है। पर आपको कोई रिग्रेट है अपना? आपका इतना इलस्ट्रियस करियर रहा है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि शायद ये मैंने तब कर ली होती तो आज वक्त अलग होता, या यू नो उसका कॉन्सिक्वेंस एक अलग होता? नहीं, जिंदगी में बस आगे ही कदम बढ़ते रहे, वही एक खुशी की बात है कि हर मेहनत रंग लाती रही। ओके, चलिए क्योंकि आप तीनों फ्रेंड्स हो, तो आप जाने से पहले हमें बताना चाहेंगे कि आपका एसोसिएशन कब से आप जानते हो इनको, और आज दुबई आए हैं आपकी बुक लॉन्च करने, तो आई एम श्योर दे आर वेरी क्लोज टू यू, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको बांध के रखती है। मैं इनको जानता हूँ जब मेरे बाल थे। तब से जानता हूँ, तब से ये 30-40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कोई आपका ही कोई किस्सा बता दो जाने से पहले, कोई ऐसा किस्सा जो रोशंस में ना सुना हो। भाई ये तो इनसे पूछिए, बर्थडे बॉय हैं ये बताएंगे हम। मेरे तो किस्से इतने हैं, कुछ मैं बता सकता हूँ, कुछ मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरी गुड्डू के साथ कम से कम एज सेड 35-40 साल से दोस्ती है, जब इनके बाल थे। और उस वक्त we was getting into movies and struggling in that time,
And I remember coming for dubbing my songs in your recording theater. याद है जब लकी अली के गाने हमने रिकॉर्ड कर रहे थे, वो एक हमने बनाया था 12 म्यूजिक डायरेक्टर का, तो उधर से वो दौर चला. आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड यू सी गुड्डू एज अ पर्सन इज अ वेरी रिजर्व पर्सन. वो सबके साथ ज़्यादा खुलता नहीं है, घुल मिलता नहीं है, वो हमेशा रिजर्व रहता है. बट उसको मतलब क्लोज लाने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है. शशि नोज अबाउट दैट. एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ही इज ऑलवेज रिजर्व, नॉट बिकॉज ही डजंट लाइक यू और एनीथिंग, बट दैट इज हिज नेचर. ही ऑलवेज ऑब्जर्व्स. एज अ डायरेक्टर ही इज ऑब्जर्व. बट शशि के साथ तो मेरी आई थिंक 40-45 साल की दोस्ती है, और हम तो कहते हैं चड्डी बड्डीज हैं जैसे. वी डिस्कस एवरीथिंग अंडर द सन, ऑल आवर ट्रबल्स, ऑल आवर इश्यूज, ऑल आवर मैटर्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी गलतियों की, इनकी गलतियों से. काफ़ी कुछ सीखा हमने. और ये जर्नी जो है हमारी जो रही है, आज इस स्टेज पे आई है कि आज ये आए हैं मेरी बुक की लॉन्च पे है, और मैं इनको फेलिसिटेट कर रहा हूँ on the huge success of Roshan's Pay, which is, I think, a great thing. And believe me, I'm from inside so happy. I'm not so I know concerned that. about my book, but I'm happy that you all are here. And I'm felicitating you because your documentary has been so successful. And it is the hard work of yours and the work of Shashi. And Shashi has put his blood and sweat into it, as you must have seen. And it is showing. And जी, believe sir. me, Shashi, मैं दिल से बहुत खुश हूँ. मैं We- बहुत थैंक खुश यू हूँ. सो मच. वी होप कि आपकी बुक भी इतना ही सक्सेस Yes, करे, और 100%. आपकी बुक भी हमें नेटफ्लिक्स पर एज अ सीरीज देखने मिले. लाइन है कि दिल से जो निकलती है बात असर रखती है. तो जो भी चीज़, चाहे वो किताब हो या फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो, जो दिल से निकलती है उसका असर होता है. बिल्कुल. Thank और you. शशि ने इतनी मेहनत की है और इतनी दिल दिखता है. मतलब मैं देख रहा था उस दिन रात को, मैंने 12 बजे कोई शुरू की, सुबह 3-4 बजे तक, और मैंने 3:30 बजे शायद तुम दोनों को मैंने मैसेज किया सुबह कि भाई, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज. It was, so emotionally done, so beautifully done. It is very beautiful. That, it touched your heart It somewhere. does. And that is what makes the success of this. That is what it is. So, आपने इनको ये नहीं बोला कि के से शुरू कर दो, ये डॉक्यूमेंट्री भी है. पहले वो क्या नाम रोशन जी है ना, तो क्वेश्चन नहीं कर सकते. क्वेश्चन नहीं कर सकते. कुछ आगे लगा कि द किस्मत ऑफ रोशन, समथिंग लाइक वो ये तो We want- मेरे में अच्छा एक वर्ड और आ गया अभी, मैं के से रखने की जरूरत नहीं, अभी आर से भी रख सकता हूँ. अच्छा, दिस इज आल्सो, या आई एम आल्सो रौनक, सो आर इज गुड. ठीक. थैंक यू सर. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. All the Thank you. best. Why don't you guys get a picture?